Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So in this video, we will discuss the 1 marker questions, that is MCQ based questions of part A, employability skills, and unit 2, that is self-management skills. And I am sure if you will watch this video till end, तो आपके जितने भी doubts हैं वो एकदम crystal clear होने वाले हैं. So I hope you all are ready to play this quiz with me. बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत. But before starting this video, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. So now, let's start our today's video. So now, let's start with our first question. Which of the following is not a source of stress? कि किस वजह से आपको स्ट्रेस नहीं होता है, right? First one is sleep, second is worries, third is tension and fourth is danger. So if I am not wrong, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को पता है. Yes, you all are correct. That is option A, sleep. I am sure सोने की वजह से किसी को स्ट्रेस तो नहीं होता होगा, बट हाँ सब रिलैक्स जरूर फील करते होंगे, राइट? So the correct answer for this question is option A, sleep, जिसकी वजह से स्ट्रेस नहीं होता है. Worries, tension, danger, इन सभी की वजह से स्ट्रेस होता है. Now next is positive stress is also called. अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आएगा, मैम स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है. बिल्कुल. Basically we are having two types of stress, that is positive stress and negative stress. Positive stress, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट सपोज कि आपने एनुअल फंक्शन में कोई स्पीच आपने प्रिपेयर की, राइट? अब कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस में होते हो कि पता नहीं वो किस तरीके से डिलीवर होगी, जैसे आपने सोचा है वैसे होगा कि नहीं. अगर आप इसको एक पॉजिटिव वे में लो, आप उसकी प्रिपरेशन और अच्छे से करोगे. सो अगर हम स्ट्रेस को मीन्स एकदम से लाइक अपने ऊपर हावी ना होने दे, तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव स्ट्रेस. सो पॉजिटिव स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड eustress, right? And next question is negative stress. Negative stress is also called eustress, distress, both of these and none of these. अब अगर positive stress मेरा eustress है, तो definitely both of these answer नहीं होगा, eustress भी नहीं होगा और none of these भी नहीं होगा. So correct answer is option B, that is distress. Now let's move on to our next question. What makes you complete work और स्टडीज विदाउट अदर्स चीयरिंग यू? कि अगर आपको कोई चीयर अप नहीं कर रहा है बट स्टिल आप अपना काम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, राइट? वो किस चीज को मींस एक्सप्लेन करता है कि क्या चीज है आपके अंदर? दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम. अगर आप कोई चीज अपने आप से कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज self motivation. Next question, which of the following are types of motivation? So basically we are having two types of motivation, that is internal motivation and external motivation. Internal motivation आपको within होगा, means suppose आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, आपको अंदर से खुशी मिलेगी वो चीज करके, that is internal motivation. External motivation you can say, अगर आपको कोई reward, appreciation दे रहा है तो आपका कौन सा होगा, external motivation. So we are having the correct answer as option C, that is both A and B. So two types of motivation are there, internal and external. Now next question, Ravi works hard to get the best student award at the end of year. What type of motivation is this? अब ये तो मुझे पता है कि we are having two types of motivation, that is internal और external. अब इसमें क्या है, रवि ने पूरा मीन्स वर्क हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड. अब जहां पर अवार्ड की बात हो रही है, रिवार्ड की बात हो रही है, अप्रिसिएशन की बात हो रही है, इस वजह से काम किया, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल मोटिवेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन. नाउ नेक्स्ट इज Trisha is always tense during exam time. She is a sincere and studious student, but the thought of exams creates anxiety in her. Which stress management technique that you would suggest to help her? I think question is very much clear. You can relate it
टू योरसेल्फ आल्सो, बट हाँ एग्जाम टाइम पर स्ट्रेस लेना इट्स लाइक इससे बेटर तो है कि हम अपना अच्छे से स्टडीज कर लें, राइट। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक कौन सी फॉलो करेंगे? फर्स्ट वन इज योगा, दैट इज आल्सो गुड ऑप्शन. एक्सरसाइज, यस. Vacation with family, and all of these. So the correct answer is all of these. All these are my stress management techniques. Now next question is dash ability of a person to do the things that need to be done without someone or something influencing us. Means कि आप कोई काम कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, किसी के इन्फ्लुएंस पर नहीं कर रहे हो. मीन्स कोई आपको कह नहीं रहा है वो काम करने के लिए, अंदर से ये चीज आ रही है, तो दैट मीन्स सेल्फ मोटिवेशन. ऑप्शन ए. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है बेटा लाइक अपने बारे में हमें सब कुछ जानना, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, हमारी वीकनेस के बारे में, अपनी मीन्स लाइक अपने बारे में पूरी नॉलेज होना, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, इसमें आपका मोरल वैल्यूज आ सकता है लाइक योर वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर, वो आपका किस में आएगा? सेल्फ रेगुलेशन में. बट इसमें क्वेश्चन क्या है? डैश एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस, कि आपको कोई कह नहीं रहा है वो काम करने के लिए, आप खुद से कर रहे हो, तो दैट मीन्स सेल्फ मोटिवेशन. नाउ नेक्स्ट इज which of the following is not a self management skill? Problem solving, bargaining, understanding self and confidence building. So अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी, दैट इज bargaining. Bargaining is not a self management skill. Remaining all are my self management skills. Problem solving is self management skill है, understanding self, confidence building. So these three are my self management skills. Option B is the correct answer, that is bargaining, which is not a self management skill. Now next is grooming is a term associated with dash. Grooming means related to your personality. Like you are dressed up very well, neat and clean appearance. So इसमें आपका जो correct answer होगा that is option C. Grooming is a term which is associated with neat and clean appearance. Now next is dressing and grooming are important because they help us to look. अगर आप अच्छे से dressed हैं, neat and clean appearance है, that is grooming अच्छे से है, तो you look smart, right? So the correct answer is option A, that is smart. Obviously option D नहीं होगा, you will not like stressed. Stress में नहीं लगोगे अगर आप अच्छे से dressed हो, unity, shabby, see, right? So the correct answer is option A. Next is which of the following is a quality of a self-confident person? So basically जो आपका self-confident person होगा उसमें ये 4 main qualities होती हैं. Self-belief, hard work, positive attitude and commitment. So the correct answer is option C, that is committed. Just check out all these options also. इनके अलावा भी अगर कोई हो मीन्स committed के अलावा like self-belief, hard work, positive attitude, commitment. So these are all your 4 main qualities of a self-confident people. No doubt other qualities are also there, but जो आपके NCERT book है उसमें ये 4 mention है. You have to write your answer accordingly. Means it's like ऐसा नहीं है कि सिर्फ NCERT, बस हाँ ये टॉपिक ऐसा है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कि आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है. इन नॉट इवन दिस टॉपिक, बाकी जो भी टॉपिक हो हर एक को अगर आप अच्छे से रीड आउट करोगे जो आपका CBSE स्टडी मटेरियल है, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द MCQs आल्सो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट आवर डे पॉजिटिवली? अगर हमें अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करनी है तो मुझे क्या बेस्ट मेथड अपनाना चाहिए? फर्स्ट वन इज think about all that can go wrong. This is not the option. Second, think about the difficult test you will face during the day. अगर स्टार्टिंग में मैं डिफिकल्ट टेस्ट के बारे में सोचने लग जाऊंगी क्या मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा? नो. थर्ड ऑप्शन इज think about all your accomplishments so far and feel good about it. And option D is think about the traffic on the road and feel stressed. So the correct answer for this is option C, that is think about all your accomplishments so far and feel good about it. जनरली भी ऐसा होता है जब भी हम सुबह सोकर उठते हैं तो दिन की शुरुआत तभी अच्छी होगी अगर हम अपने मीन्स पूरा दिन तभी अच्छा जाएगा अगर हम स्टार्टिंग से पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वाइब्स होंगी
तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल गेट्स फीडबैक ऑन हिज प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम हिज क्लास टीचर. Which of these options demonstrates positive attitude in this situation? अब राहुल ने प्रोजेक्ट बनाया, टीचर ने उस पर कुछ फीडबैक दिया उसको. Which of these options demonstrates positive attitude in this situation? So first one is Rahul ignores the feedback. इग्नोर तो नहीं करना चाहिए अगर टीचर ने कोई फीडबैक दिया है तो. सेकेंड इज राहुल टेक्स द फीडबैक बट डज नॉट यूज इट. उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है. थर्ड वन इज Rahul tells others that the teacher is wrong. Fourth option is Rahul learns from the feedback and makes his project work better. So the correct answer is option D, that is Rahul learns from the feedback and makes his project work better. Now next is dash is the ability to control one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations. अब यहाँ पर किसकी बात आ गई मेरे पास? इमोशंस. तो इमोशंस के लिए हमारे पास दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट. स्ट्रेस नहीं होगा, सेल्फ मोटिवेशन की बात नहीं हो रही है बेटा इसमें, प्लस सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं है. ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट और यू कैन से सेल्फ कंट्रोल कैन बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. राइट, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. अगर सेल्फ कंट्रोल गिवन हो तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज dash can be defined as our emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demands or threat. अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से रीड आउट करो. dash can be defined as our emotional, mental, physical, social. All these are four types of stress. Reaction to any perceived demands or threats. हमने वहां पर रिएक्ट भी कर दिया, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बी, दैट इज स्ट्रेस. Now next is we can use dash method to set goals. अब गोल सेट करने के लिए we're having SMART method. अब SMART की जो फुल फॉर्म है, S means specific, M measurable, A means achievable, R means realistic and T means time bound. तो आपके हर एक अल्फाबेट को मीन्स जितने स्मार्ट इस वर्ड में अल्फाबेट्स हैं, हर एक की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए. Now next question is गोल सेटिंग इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल लाइफ. अब ऑब्वियसली अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई भी टारगेट सेट करो, गोल आपको अपनी लाइफ में जरूर होना चाहिए. व्हाट डज द लेटर एस सिग्निफाइज इन द स्मार्ट मेथड टू सेट गोल्स? ये भी हमने सभी की फुल फॉर्म्स डिस्कस की हैं. एस मीन्स स्पेसिफिक. आपका जो गोल होगा दैट मस्ट बी स्पेसिफिक. नेक्स्ट आता है फॉर अल्फाबेट एम. एम मीन्स मेजरेबल. तो आपका जो गोल है दैट मस्ट बी measurable. Next is alphabet A. आपका जो टारगेट आपने सेट किया that must be achievable one. For example, if I will set my target कि before the means one day before the exam, I will plan to study all the chapters of that particular subject. Will it be possible? उसमें इतनी effectiveness नहीं आएगी, तो वहां पर वो मेरा टारगेट अचीवेबल नहीं है. प्लस मैंने ये भी सेट कर दिया मुझे 95 अबव भी चाहिए. ठीक है, तो वहां पर वो टारगेट अचीवेबल नहीं है एंड ऑब्वियसली वो रियलिस्टिक भी नहीं होगा. राइट, सो योर टारगेट मस्ट बी अचीवेबल. एंड नाउ नेक्स्ट इज आर. आर मीन्स रियलिस्टिक. रियलिस्टिक मीन्स एटलीस्ट जो आपका टारगेट है वो रियल तो लगे. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऐसे टारगेट सेट कर लो जो रियलिस्टिक ही ना हो, उसका भी आपका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा. नेक्स्ट इज गोल सेटिंग इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल लाइफ. व्हाट डज द लेटर टी सिग्निफाइज? T means time bound. आपका जो मीन्स जो भी हम गोल सेट करते हैं दैट मस्ट बी टाइम बाउंड. टाइमली हम उसको क्या करना है? कंप्लीट करना है. नेक्स्ट इज डैश स्ट्रेस मेक्स अ पर्सन वरीसम, लेस प्रोडक्टिव एंड मे लीड टू वेरियस डिसऑर्डर्स. अब डिसऑर्डर्स की बात हो रही है, वरीसम, लेस प्रोडक्टिव, तो हमारा कौन सा स्ट्रेस होगा? वो नेगेटिव स्ट्रेस. एंड नेगेटिव स्ट्रेस इज ऑल्सो नॉन एज डिस्ट्रेस. तो अगर एग्जाम्पल मीन्स ऑप्शन में डिस्ट्रेस गिवन हो इंस्टेड ऑफ दिस नेगेटिव स्ट्रेस, तो आप वो भी अपना करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डैश रेफर्स टू ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी एंड माइंड. अब सेल्फ मोटिवेशन और रेगुलेशन तो नहीं हो सकता है. द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो स्ट्रेस को मैनेज किस तरीके से करना है वो सर आपका किस में आएगा? स्ट्रेस मैनेजमेंट में. Now next is students may feel dash stress if they are unable to submit their assignment.
बेसिकली जो हमारे स्ट्रेस हैं, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज: मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड सोशल स्ट्रेस। तो अगर स्टूडेंट्स ने कोई असाइनमेंट टाइम पर सबमिट नहीं कराई है तो दे विल बी हैविंग द मेंटल स्ट्रेस। Now let's move on to our next question. Issues related to health of an individual can lead to low self-esteem and cause dash stress. अब issues किससे related आ गए मेरे पास? Health से related. तो means health से related अगर कोई issues है तो that means it will come under the category of physical stress. So the correct answer is physical stress. Now next is importance of stress management is and are मीन्स अगर आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर लेते हो उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है? इट विल इम्प्रूव योर मूड, इट विल बूस्ट अप योर इम्यून सिस्टम, इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड ऑल ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. नाउ नेक्स्ट इज इरिटेशन, इम्पेशंस, लोनलीनेस, अपसेट, एंजाइटी आर साइंस ऑफ डैश स्ट्रेस. Now these are all examples of mental stress. अगर आप mentally stress हैं तो आपको irritation होगी, आप चिड़चिड़े से रहोगे, impatience, loneliness, अकेला रहना पसंद करोगे, upset mood, आपका मूड भी ठीक नहीं रहेगा. So ये are signs of mental stress. Next is dash stress management techniques. Physical exercise, yoga, meditation, all of these. Obviously the answer is all of these. All these are examples of your stress management techniques. Now next is dash includes a series of postures and breathing exercise to control body and mind. अब stress management techniques तो काफी सारी हैं, but उन techniques में से कौन सी technique है जो क्या include करता है? series of postures and breathing exercises to control body and mind. That is correct answer is option B. That is yoga. Now next is dash is a practice where an individual is supposed to focus his or her mind. अब mind को मुझे शांत रखना, right? तो उसके लिए मेरे पास कौन सी टेक्निक है? That is meditation. Next is dash is a school of Hindu philosophy. It reduces stress which includes series of postures and breathing exercises. Same question है, आंसर भी सेम होगा, दैट इज योगा. नाउ नेक्स्ट इज हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड वंस ऑन कैरेक्टर. अब अपने बारे में ये सारी चीजें अगर मुझे पता होनी चाहिए, दिस इज नॉन एज सेल्फ अवेयरनेस. नेक्स्ट इज एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी एनहेंस्ड बाय बीइंग डैश. एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली मीन्स कि अपने आप सारे काम खुद करना विदाउट डिपेंडेंसी ऑन एनी अदर. सो सेल्फ अवेयर, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड. सो अगर मैं सारे काम इंडिपेंडेंटली कर रही हूँ तो आई विल बी सेल्फ अवेयर ऑल्सो, सेल्फ मोटिवेटेड ऑल्सो, सेल्फ रेगुलेटेड ऑल्सो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक. अब आपने क्या बताना, विच इज नॉट अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक. फर्स्ट वन इज टेकिंग नेचर वॉक. नेचर वॉक इज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक. फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ. आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हो, उसके बाद भी आप लाइफ के जितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सब के बारे में सोचते रहो तो ऑब्वियसली आप ज्यादा स्ट्रेस हो जाओगे. सो दिस इज नॉट अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक. लास्ट इज मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक. जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी, फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. नाउ नेक्स्ट इज बीइंग डैश मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अब अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने बारे में बात हो रही है, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना. सेल्फ अवेयरनेस, अगर मैं अपने बारे में मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपनी एबिलिटीज के बारे में बात करूं, अपने ओन कैरेक्टर के बारे में बात करूं, तो अपने से रिलेटेड जो भी बात होगी दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ मोटिवेटेड, मैं खुद से कोई काम करना चाह रही हूँ बिना किसी के कहने पर. सेल्फ रेगुलेटेड मीन्स आपका खुद पर कंट्रोल है, वैल्यूज ड्रिवन में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो. वो सब किस में आएगा? सेल्फ रेगुलेटेड में. नाउ नेक्स्ट इज dash is simply the force within you
that drives you to do things. अब अपने आप अंदर से वो चीज आ रही है तो that means self motivation. Now next is, which of the following statement is showing weakness of Ravi? Ravi plays guitar very well. इसमें तो उसकी weakness नहीं दिख रही है. Ravi is good at creative writing. Okay. Next is, Ravi find it difficult to solve mathematics problems. यहाँ उसकी weakness मुझे दिख रही है. That student Ravi, he is not able to solve mathematical problems. So the correct answer is option C. Now next question is, Ravi performed on annual day function and learned something new, such as dancing, singing, etc. What type of motivation is this? अब यहाँ पर कोई किसी रिवार्ड की बात नहीं हो रही है, किसी अवार्ड की बात नहीं हो रही है, ये चीज अंदर से है, राइट? उसने एनुअल फंक्शन पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ नई चीजें भी उसको सीखने को मिली, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल मोटिवेशन. नेक्स्ट इज, रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. अब उसने जो है काफी मेहनत की, क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर उसको क्या चाहिए था? वर्क्स हार्ड to get the best student award. A best student award चाहिए था, तो that means this type of motivation is known as external motivation. Now next is, Suresh participated in a 100-meter race and won a prize. Prize की बात हो गई, award, reward या appreciation, right? This motivated him to go for practice every morning. What type of motivation is this? External motivation. Now next is, Rekha gets up at 5 a.m. and goes for her dance classes. हर रोज रेखा हमारी 5 o'clock in the morning उठ जाते हैं और डांस क्लासेस के लिए जाते हैं. Then she comes home and finishes her homework before going to school. और स्कूल जाने से पहले अपना सारा काम कर लेते हैं. तो this is an example of self motivation. Now next is, Neha spends all her after school hours to practice more and more sample question papers. She wants to do well in her exam. This is an example of again self motivation. ये चीज अंदर से कि वो अपना स्कूल के बाद जब भी घर आते हैं तो काफी ज्यादा वो सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं. उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए. सेल्फ मोटिवेटेड है हमारी नेहा, राइट? नाउ नेक्स्ट इज, डैश आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट देम. These are my goals. Dash is all about finding and listing your goals and then planning on how to achieve them. This is goal setting. Goal setting means it's all about finding, जितने आपके goals है find out कर लो, list कर लो. It's all about finding and listing your goals and then planning on how to achieve them. अगर आपका कोई major goal है, you have to divide it into separate small goals. Now next is, Samira is always punctual at school. She has a regular schedule that she follows every day. Nisha usually arrives late to work. She does not submit her assignments on time. She sometimes forgets the main task also. Which skill does Samira possesses? अब समीरा की अगर मैं बात करूं तो she is always punctual. She has a regular schedule also that she follows every day, right? तो यहाँ पर मेरे को कौन सी स्किल दिख रही है समीरा में? दैट इज टाइम मैनेजमेंट स्किल. टाइमिंग्स की बात हो रही है, पंक्चुअल है, उसने अपना रेगुलर शेड्यूल बना रखा है, उसको फॉलो भी कर रही है, तो दैट मीन्स समीरा इज हैविंग द स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट. नाउ नेक्स्ट इज, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड वंस ऑन कैरेक्टर. अब सारी चीज अपने बारे में आ गई, अब आपको आंसर पता है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. नाउ नेक्स्ट इज, dash individuals have an inner urge to do something, achieve their goals without any external pressure for award or appreciation. कि आपके अंदर खुद से ये भावना है कि आपको सारा काम बहुत अच्छे से करना है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल अवार्ड और अप्रिसिएशन. आपको नहीं फर्क पड़ता कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको अवार्ड दे उस चीज के लिए, क्योंकि आप खुद के लिए वो काम कर रहे हो. तो दैट मीन्स यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. Next is, dash guides independent individuals as it helps them consider long-term consequences rather than just transient feelings. ठीक है, इसका आंसर होगा self regulation. Next is, dash leads to a responsible
and a value-driven behavior. Value-driven behavior means self-regulation. Dash is a life skill and must be necessarily developed. अब लाइफ स्किल की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सेल्फ मोटिवेशन इज माई लाइफ स्किल दैट मस्ट बी नेसेसरली डेवलप्ड. Now next is stress management refers to dash stress management. It focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situations. Both A and B, none of this. So answer मुझे पता लग रहा है that is both A and B. So now next question is speaking out to the well-wishers like your family members and friends helps us in stress management. ठीक है, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप फैमिली मेंबर से फ्रेंड से बातचीत कर सकते हो, इससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है. तो एज दे प्रोवाइड अ डैश सपोर्ट सिस्टम. अब फाइनेंशियली हेल्प की बात नहीं हुई है, फिजिकल भी आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, दैट इज सोशल सपोर्ट सिस्टम. सोसाइटी से मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक मिल रही है लाइक योर वेल विशर्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सोशल. नेक्स्ट इज डैश इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी to identify and manage one's own emotion as well as emotions of others. Emotions की बात हो रही है तो that means emotional intelligence. Now next is importance of stress management. I think this question we have already done. It improves mood, it will boost immune system, it increases efficiency and all of these. So the correct answer is option D, that is all of these. Now कुछ fill in the blanks हैं. Vacationing helps in dash individuals. ये आपका लास्ट ईयर में फिलिप्स में आया था, तो इस बार एमसीक्यूज में हो सकता है कोई ऑप्शंस दे दें. तो वेकेशनिंग, अगर आप वेकेशन पर जाओ तो इट विल हेल्प्स इन डी स्ट्रेसिंग द इंडिविजुअल्स. नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश. इट रिलीव स्ट्रेस एज दे स्टेबलाइज मूड, इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम एंड इंड्यूस स्लीप. अब यहाँ पर आप कोई भी दो फिजिकल एक्सरसाइज के नेम्स लिख सकते हो लाइक वॉकिंग, स्कीपिंग, इस तरीके से. Now next is unmanaged stress leads to dash and dash. अगर आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो it will lead to anxiety and sorrow. Now next is unmanaged stress results in ill status of dash and dash health. हमारी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ. Now last is small amount of stress have a positive effect. अगर जो स्ट्रेस है स्मॉल अमाउंट तक है, it has a positive effect and they help us stretch ourselves to new level. So obviously this statement is true. So I hope you have enjoyed this quiz session of Unit 2, that is self management skills. आपके जितने भी doubts हैं वो एकदम crystal clear हो गए होंगे. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like this video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling and keep studying. Thank you.